Good morning, student. Today we'll discuss about nucleosome and uh, DNA packaging into nucleosomes and why nucleosomes are the building blocks of chromosome. These things we'll understand in today's class. In last class, we discuss about meiosis, molecular basis of meiosis, and we also discussed the chromosomal structure, microscopic chromosomal structure. So now we discuss about the building blocks of chromosome, which are nucleosome, right? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसोम्स क्रोमोसोम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हमने अपनी लास्ट क्लास में मियोसिस के कुछ मॉलिक्यूलर बेसिक फंडामेंटल मैकेनिज्म्स डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने क्रोमोसोम की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। सो टुडे हम डीएनए कैसे न्यूक्लियोसोम पैकेज होता है, डीएनए और न्यूक्लियोसोम की पैकेजिंग कैसे होती है, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द basic DNA packaging into nucleosome, right? And nucleosomes are the building block of chromosome. Now we'll discuss. Now I explain how. The majority of DNA in eukaryotic cell is packaged into nucleosome. Nucleosome is composed of a core of 8 histone proteins and the DNA wrapped around them. The DNA between the nucleosome is a linker DNA. This structure is basically like string and beads, as we discussed this earlier class also, right? By the assembling into nucleosome, the DNA is compacted approximately sixfold. This is far short of the around 1000 to 10,000 fold DNA compaction observed in eukaryotic cell. The first stage of DNA packaging is essential for all the remaining level of DNA compaction. So basically DNA compaction is a packaging of DNA, right? The DNA most tightly associated with the nucleosome called the core DNA. So if we discuss, and you can see in this structure also, when DNA is enclosed and wrapped around his core histone cores, we can say it nucleosome, and that DNA which is wrapped around that histone, we can say it core DNA, right? And the DNA which link two of these, we can say it linker DNA. As you can see in this figure, both difference between core DNA, which part is core DNA and which part is linker DNA. So the core DNA is approximately the packaging around the histones, and linker is the connection between these two, right? So this core DNA is wound approximately 1.65 times around the outside of the histone octamer, like thread around a spool. The length of DNA associated with each nucleosome can be determined using nuclease treatment. Micrococal nuclease we use for this experiment, right? Around 147 base pair length of this DNA is an invariant feature of nucleosomes in all eukaryotic cell. So in contrast, we can say that the length of the linker DNA between chromosome is variable, right? Typically, this distance is around 20 to 60 base pair, and each eukaryotic has characteristic average linker DNA length. So this linker DNA length varies in eukaryotes between 20 to 60 base pair. Each eukaryote has its own character of this linker DNA length. The difference in average linker DNA length is likely to reflect the difference in the nature of larger structure formed by nucleosomal DNA. Nucleosomal DNA in each organisms rather than difference in the nucleosome themselves. So
In any eukaryotic cell, there are stretches of DNA that are not packaged into nucleosomes. Typically, these are the regions of DNA engaged in the gene expression or in replication or in recombination. Although these areas are not bound by nucleosome, but these sites are typically associated with non-histone proteins that are either regulating or participating in these events. Whatever I explained you can easily see in this figure. DNA packaged into nucleosome. That first one is a schematic diagram of the packaging and organization of nucleosome, and another one is a crystal structure of nucleosome showing DNA wrapped around the histone protein cores. सो स्टूडेंट्स आज हम न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियोसोम्स को क्रोमोसोम्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं. जो मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल होती है, जो मेजॉरिटी होती है यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में, वो जो पैकेजिंग होती है वो न्यूक्लियोसोम्स में ही होती है. सो बेसिकली जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसकी पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम्स में होती है. ये न्यूक्लियोसोम कोर हिस्टोन्स से कंपोज्ड होते हैं और डीएनए इसके चारों तरफ पैकिंग करता है, रैप करता है, इसके चारों तरफ रैपिंग करता है, जिस तरह हम गिफ्ट पेपर को रैप करते हैं. ये जो डीएनए है बिटवीन न्यूक्लियोसोम, प्रत्येक जो न्यूक्लियोसोम है उसके बीच में जो डीएनए है, डीएनए होता है दो के बीच में, प्रत्येक न्यूक्लियोसोम्स के बीच में, उस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं. आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो लिंकर डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ता है, उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं, राइट. ये जो लिंकर डीएनए है, ये दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ता है. इसके अलावा आप इस पे कोर डीएनए देख सकते हो. इसके अलावा हमें कोर डीएनए दिखाई दे रहा है जो हिस्टोन्स के चारों तरफ रैप करता है. अब ये जो असेंबली होती है या इस प्रक्रिया को हम डीएनए कंपैक्शन कहते हैं. तो हम एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में भी इस पे काफी बार ऑब्जर्व किया गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें अराउंड 1000 से 10,000 फोल्ड तक डीएनए कंपैक्शन होता है. मतलब इतना ज्यादा इस असेंबली में न्यूक्लियोसोम असेंबली में डीएनए कॉम्पैक्ट हो सकता है 6 फोल्ड तक. ये जो फर्स्ट स्टेज है डीएनए पैकेजिंग की, ये जो हम फिगर देख रहे हैं ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है डीएनए पैकेजिंग. ये फर्स्ट स्टेज अन्य आगे प्रक्रिया के लिए व अन्य रिमेनिंग प्रोसेसेस के लिए डीएनए कंपैक्शन के अनदर दूसरे रिमेनिंग लेवल्स के लिए अति आवश्यक है. अब डीएनए टाइटली न्यूक्लियोसोम्स के साथ जो एसोसिएट होता है उसे हम कोर डीएनए कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है. ये लिंकर डीएनए लगभग 20 to 60 बेस पेयर का होता है एंड कोर डीएनए अराउंड 146 बेस पेयर का होता है. ये कोर डीएनए अराउंड जो हिस्टोन ऑक्टामर्स है उसके साथ करीब 1.65 टाइम उसके साथ रैप करता है, उसको वो घेरता है. 1.65 टाइम से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जिस तरह एक थ्रेड को हम स्पूल के चारों तरफ घुमाते हैं, उस तरह ही ये एक घुमावदार संरचना उसके चारों तरफ घूमता है. जो इसकी लेंथ है डीएनए की, जो कि न्यूक्लियोसोम से एसोसिएट होते हैं, वो न्यूक्लियस ट्रीटमेंट से हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं लेंथ को, जिसके लिए हम माइक्रोकोकल न्यूक्लियस इसके लिए हम यूज करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. सभी यूकैरियोटिक सेल्स में लगभग हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो उनकी पैकेजिंग देखी जाती है और उसमें सेम कोर डीएनए व लिंकर डीएनए देखे जाते हैं, जो हिस्टोन कोर के चारों तरफ कोर डीएनए वुंड करता है और आगे दो न्यूक्लियोसोम्स को लिंकर डीएनए जोड़ता है. यूकैरियोट्स में लगभग 147 बेस पेयर की जो लेंथ है डीएनए की वो सेम रहती है. ये सेम फीचर्स है यूकैरियोटिक सेल्स का. ये नहीं बदलती है यूकैरियोटिक सेल में.
परंतु जो लिंकर डीएनए की लेंथ है न्यूक्लियोसोम्स की वो वेरिएबल होती है, वो परिवर्तनशील होती है। टिपिकली हम देखते हैं कि लिंकर डीएनए का जो डिस्टेंस होता है वो 20 से 60 बेस पेयर होता है, और प्रत्येक जो यूकैरियोटिक सेल है उसका ये एक हम इसको बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल की एवरेज लेंथ है लिंकर डीएनए की। लेकिन लिंकर डीएनए की लेंथ में यूकैरियोट्स की स्पीशीज बाय स्पीशीज अंतर होता है। हमने इसमें अंतर देखा जाता है। और ये जो अंतर है ये उस यूकैरियोटिक सेल का अपना एक कैरेक्टर होता है। बेसिकली ये जो करेक्टर है जो अभी हमने बात की जिसकी, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस बताता है, न्यूक्लियोसोम में नहीं। एंड दूसरा हम देखते हैं कि डीएनए में किसी भी सेल में जो डीएनए में कुछ ऐसे स्ट्रेचेस होते हैं जो पैकेजिंग का पार्ट नहीं होते हैं, न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग का पार्ट नहीं होते हैं। टिपिकली डीएनए के जो रीजन होते हैं ये बेसिकली कुछ मैकेनिज्म्स में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जीन एक्सप्रेशन में या फिर रेप्लिकेशन में या रिकॉम्बिनेशन में। ये बेसिकली न्यूक्लियोसोम्स के साथ बाउंड नहीं होते हैं ये पार्ट, बट फिर भी ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ इनका एसोसिएशन होता है, या तो ये उसे रेगुलेट करते हैं या ये इन इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से ये दो काम में इन्वॉल्व होते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि इस स्ट्रक्चर में आपको डीएनए पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम्स की कैसे हुई है आपको दिखाई दे रही है। इसके जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है वो एक सिस्टमैटिक डायग्राम है कि पैकेजिंग और ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है न्यूक्लियोसोम का यूकैरियोटिक सेल में। और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का। डीएनए डीएनए का जो रैपिंग है वो कैसे होता है हिस्टोन कोर के चारों तरफ, और न्यूक्लियोसोम्स का कैसे निर्माण होता है। So student, this diagram is showing you how histone core octamer form and how core DNA wrap this octamer structure, and how linker DNA link to nucleosomes, right? And you can see the five type of histones are there in this diagram: H1, H2A, H2B, H3, and H4, which are the most abundant one in eukaryotes, right? And you can see how nucleosomes string bead structure form. You can see this one in this other part of this diagram, right? So histones are typically small positively charged proteins, right? These histones are most abundant proteins associated with eukaryotic DNA, and eukaryotic cell commonly contain 5 abundant histones. I told you that these are 5 abundant histones which you can see in this diagram, right? H1, H2A, H2B, H3, and H4. We can say that histone H2A, H2B, H3, and H4 are the core histones and form the protein core around which nucleosomal DNA is wrapped. And this histone H1 is not a part of nucleosome core particle. Instead, it binds to the linker DNA and is referred to as the linker histone. Right? So students, आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हो कि किस तरह हिस्टोन के एक्टामर के चारों तरफ कोर डीएनए ने रैपिंग की है, और दो न्यूक्लियोसोम्स को कैसे लिंकर डीएनए ने कनेक्ट किया है। जब हम ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जब हिस्टोन प्रोटीन कोर के चारों तरफ कोर डीएनए रैपिंग करता है तो इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एंड कैसे ये दो न्यूक्लियोसोम को लिंकर डीएनए लिंक कर रहा है। एंड दूसरे पार्ट पे आप देख सकते हो न्यूक्लियोसोम के बीड्स कैसे दिखाई देते हैं, बीड्स जैसी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, राइट? तो ये जो हिस्टोन्स हैं आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये आपको सारे जो मोस्ट अबेंडेंट जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं यूकैरियोट्स में वो आप देख रहे हो। ये हिस्टोन प्रोटीन सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल में कॉमनली 5 प्रकार के हिस्टोन्स पाए जाते हैं: H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये जो H2A, H2B, H3 एंड H4 हिस्टोन्स है, इन्हें हम कोर हिस्टोन्स कहते हैं।
और ये जो प्रोटीन कोर है इसके चारों तरफ न्यूक्लियोसोमल डीएनए की रैपिंग होती है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो। और जो H1 है वो इसका पार्ट नहीं होता है, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स का पार्ट नहीं है वो। इसकी जगह ये जो H1 है इसके साथ लिंकर डीएनए बाइंड करता है और इसको हम लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। आप ये दोनों चीजें इस स्ट्रक्चर में आपको आराम से दिखाई दे रही है कि लिंकर डीएनए H1 से होकर आ रहा है और दूसरे दोनों न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ रहा है। The four core histones are present in equal amount in cell, whereas H1 is a half as abundant as the other histone. This consistent with the finding that only one molecule of H1 is associated with each nucleosomes. Right? So ये जो फोर हमने बात की इन फोर हिस्टोन्स की, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये इक्वल अमाउंट में हम सेल में देखते हैं। परंतु जितना भी हम ये चारों को देखते हैं इक्वल अमाउंट, H1 उसका हाफ भाग में उपस्थित होता है सेल में। ठीक है, यही कंसिस्टेंसी पाई जाती है H1 की सेल्स में, राइट, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड यूटिलिटी ऑफ हिस्टोन, जितनी इनकी डिमांड और यूटिलिटी है उसके आधार पर। Student, that our DNA is negatively charged molecule and stones are the highly positively charged molecules, right? Why? Because they are containing high content of positive charge amino acids, right? Most of the histones are having greater than 20% of residue. In each of these histones are either lysine or arginine. The core histones are also relatively small proteins ranging in the size from 11 to 15 kilodalton, whereas histone H1 is about 20 kilodalton. So student, आप ये जो कोर प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, ये बेसिकली एक तो स्मॉल साइज के होते हैं, राइट, और इनकी जो रेंज होती है, इनका जो साइज होता है वो 11 से 15 किलो डाल्टन होता है। जबकि जो H1 हिस्टोन है जिसको हम लिंकर हिस्टोन बोलते हैं, उसका साइज करीब 20 किलो डाल्टन केडी होता है, 20 केडी होता है। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, जबकि हिस्टोन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ये। इनका जो पॉजिटिवली चार्ज जो इनका हिस्टोन्स में जो हाई कंटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो अमीनो एसिड के कारण होता है। इनमें मुख्य रूप से जितने भी ये हिस्टोन्स हैं इनमें हम मुख्य रूप से 20%, लगभग 20% लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड से ये बने होते हैं। इसके कारण ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हम इन्हें बोलते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कोर हिस्टोन्स H2A की, तो इसमें लाइसिन आर्जिनिन परसेंटेज 20% होता है। H2B में लगभग 22% लाइसिन और आर्जिनिन का परसेंटेज रहता है। H3 में 23% रहता है लाइसिन एंड आर्जिन परसेंटेज, एंड H4 में 24% लाइसिन एंड आर्जिनिन का परसेंटेज रहता है। एंड अगर हम लिंकर हिस्टोन H1 की बात करते हैं तो इसमें इन दोनों एमिनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन का परसेंटेज लगभग 32% रहता है। ऑल ओवर ये जो परसेंटेज होता है लाइसिन और आर्जिनिन का, इसकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। स्टूडेंट, if we talk about core histones like H2A is having about 20% of lysine and argine, and H2B is having 22% of lysine and arginine, and H3 is having around 23% of lysine and arginine, and H4 is having around 24% of lysine and arginine. So these are all are the positively charged molecule core histones, and if we talk about linker histone, then it is this positively charged amino acid lysine and arginine are in 32% in H1 linker histone. Now you can
conclude that why these are positively charged proteins, right? So I'll show you one table also. I'll share one table that in which you can see the general properties of histones in our next lecture, right? So thank you students. आप इतना you revise all this, then we'll study more about histones in next class.